कौन सा रास्ता बचता है? कौन सा रास्ता बचता है? कौन सा रास्ता बचता है? कौन सा रास्ता बचता है कि मेरे नौजवानों, मेरे नौजवानों, मेरे नौजवानों, आज नौजवानों, उसको आपकी जरूरत है। तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। सोहेल खान अफरीदी। इमरान खान साहब को अदालतों से अब कोई उम्मीद नहीं रही। मेरे नौजवानों, पूरी पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तानियों को पता है कि 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें मफलूज हो चुकी है। इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी अहलिया बुशरा बीवी जेल में है, उनकी बहनें हर मंगल को अदियाला जेल जाती है, उन पर आंसू गैस फेंका जाता है, उन पर वाटर कैनन से जहरीला पानी फेंका जाता है, उनका पांजा मिलिट्री कोर्ट में है। पूरा खानदान कुर्बानी दे रहा है। किसके लिए? उनके पास किस चीज की कमी है? हमारे लिए। क्योंकि IMF रिपोर्ट करता है कि इन चोरों डाकुओं ने 5,300 अरब रुपए की करप्शन की है। 5,300 अरब रुपए की करप्शन जो आपका पैसा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बंदे को फर्क पड़ता था, एक बंदे को फर्क पड़ता है, वो अदियाला जेल में है। वो मेरा, आपका, पूरी पाकिस्तानी कौम का इंतजार कर रहा है कि ये कौम मेरा मुकदमा लड़ेगी, ये कौम मुझे इंसाफ देगी। तो मेरे पाकिस्तानियों, तैयार हो। तो कौन सा रास्ता बचता है? 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 डी चौक या अडियाला जेल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पख्तनों سترګو کې روب راشي، غیرت کې بخلا سړیتوب راشي، تڼې تڼې به د ګریوان ووینې چې دا زلمي په لیونتوب راشي۔ میرے خیبر پختونخوا کے غیور عوام، میں آپ سب کو پشاور آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج جس جوش، جذبے، جنون کے ساتھ عمران خان صاحب کے عشق میں آپ پشاور آئے ہیں، میں آپ سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ مجھے سامنے ہمارے جتنے بھی MPs، MNAs، سینیٹر صاحبان ہیں، وہ عوام میں ہی نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج عمران خان صاحب کے اغوا کے 3 سال مکمل ہوئے ہیں، صرف خیبر پختونخوا میں نہیں، میرے نوجوانوں، پورے پاکستان میں، سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں
عمران خان صاحب کے کارکن نکلے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی عمران خان صاحب پاکستان کا سب سے مقبول ترین اور قبول ترین لیڈر ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، الحمدللہ۔ میرے نوجوانوں، صبر کا قواعدہ سے ڈارے کے در کا چلتا ہوا ہے۔ اب میرے نوجوانوں، آج جس گرمی میں آپ عمران خان صاحب کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، آپ ذرا سوچیں کہ ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب پچھلے 3 سال سے مسلسل اسی گرمی میں ہمارے لیے جیل میں بیٹھا ہے۔ عمران خان صاحب کو کس چیز کی کمی ہے؟ عمران خان صاحب شاہانہ زندگی گزار رہے تھے۔ آج بھی اگر عمران خان صاحب ان بیگوڑوں کی طرح، ان چوروں لٹیروں کی طرح ایک سائن کرے تو وہ جیل سے باہر ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب یہ نہیں کر رہے۔ وہ آج بھی جیل کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے، یہ گرمی برداشت کر رہا ہے۔ کس کے لیے؟ کیوں؟ آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے لیے، ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے۔ میرے نوجوانوں، عمران خان صاحب کو عدالتوں سے اب کوئی امید نہیں رہی۔ میرے نوجوانوں، پورے پاکستانیوں کو پتا ہے کہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتیں مفلوج ہو چکی ہیں۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ بشرا بیوی جیل میں ہے، ان کی بہنیں ہر منگل کو اڈیالہ جیل جاتی ہیں، ان پر آنسو گیس پھینکا جاتا ہے، ان پر واٹر کینن سے زہریلا پانی پھینکا جاتا ہے، ان کا بانجا ملٹری کورٹ میں ہے، پورا خاندان قربانی دے رہا ہے۔ کس کے لیے؟ ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے۔ عمران خان صاحب کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ عمران خان صاحب اقتدار میں تھے، صرف اور صرف یہ بیرونی غلام، دوسرے ملکوں کی غلام، یہ قیادت انہوں نے اندرونی غداروں نے بیرونی سازش کے ذریعے صرف اور صرف عمران خان صاحب کو اس لیے کرسی سے اتارا کیونکہ اس نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا تھا۔ صرف اس لیے کرسی سے اتارا کیونکہ اس نے کافروں کی سرزمین پر، کافروں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا تھا، اسلام کا نام لیا تھا، مسلمانوں کا مقدمہ لڑا تھا۔ اس لیے عمران خان صاحب کو اس کرسی سے اتارا گیا، ریجیم چینج آپریشن ہوا۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں پاکستان کی اکانومی 6.1% سے گروتھ کر رہی تھی۔ ہمارا مزدور خوش تھا، ہمارا کسان خوش تھا، ہمارا نوجوان خوش تھا، پاکستان ترقی کر رہا تھا۔ لیکن یہ منصوبہ ساز جو امریکہ کے غلام ہے، امریکی سازش کے ذریعے اندرونی غداروں کو ملا کر ایک خوشحال پاکستان، پرامن پاکستان کی کہ وزیر اعظم کو کرسی سے اتارا گیا۔ میرے نوجوانوں، 9 اپریل 2022 سے لے کر آج تک جب سے ان چوروں ڈاکو لٹیروں کو ملک پر مسلط کیا گیا ہے،
पाकिस्तान मुसलसल सफाई की तरफ जा रहा है। हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है, हमारा एक्सपोर्ट तबाह बर्बाद है, हमारा इंपोर्ट तबाह बर्बाद है, किसान रो रहा है, खुदकुशी करने पर मजबूर है, हमारा नौजवान पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है, पाकिस्तान छोड़ रहा है। लेकिन इन लोगों को आपकी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि IMF रिपोर्ट करता है कि इन चोरों डाकुओं ने 5,300 अरब रुपए की करप्शन की है। 5,300 अरब रुपए की करप्शन जो आपका पैसा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बंदे को फर्क पड़ता था, एक बंदे को फर्क पड़ता है, वो अदियाला जेल में है। वो मेरा आपका पूरी पाकिस्तानी कौम का इंतजार कर रहा है कि ये कौम मेरा मुकदमा लड़ेगी, ये कौम मुझे इंसाफ देगी। तो मेरे पाकिस्तानियों तैयार हो, तैयार हो, डरोगे तो नहीं, पीछे तो नहीं हटोगे, तैयार हो। मैं भी तैयार हूं, लेकिन थोड़ा इंतजार करो। मेरे पाकिस्तानियों, मुसलसल जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, हम मुसलसल चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में एक दफा फिर बदअमनी लाई जा रही है, एक दफा फिर उन लोगों का आबाद किया जा रहा है जिन्होंने मुसलसल 20 साल हमारे इस खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का खून बहाया है। हम उनको बोलते थे कि देखो पहाड़ों पर आ रहे हैं, हमें कहते थे कि झूठ बोल रहे। हम इनको कहते थे कि देखो बाजारों तक पहुंच चुके हैं, हमें कहते थे कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज हमारा बनू लहूलुहान है, हमारा लकीर लहूलुहान है, हमारा स्वाद कमल लहूलुहान है, हमारा दीन लहूलुहान है। हमारे मासूम शहरी खैबर पख्तूनख्वा के मासूम अवाम आज कभी खुदकश में शहीद हो रहे हैं, कभी ड्रोन अटैक में शहीद हो रहे हैं, कभी जेट तैयारों की बमबारी में शहीद हो रहे हैं। ये इस रियासत की नाकाम पॉलिसी है जो मुसलसल 22 साल से हम पर मुसल्लत हुई है। ये रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, हमने 2018 से 2022 तक खैबर पख्तूनख्वा में अमन देखा था। जब बिरूनी साजिश के जरिए इमरान खान साहब को हुकूमत से उतारा गया, तब डॉलरों के लिए, अपने जेब भरने के लिए, बाहर मुल्कों में जखीरे खरीदने के लिए हमारे पख्तूनों का सौदा किया गया। आज पख्तून भी रो रहा है, पख्तून भी शहीद हो रहा है। आज हमारा बलूची भी रो रहा है, बलूची भी शहीद हो रहा है। आज हमारा कश्मीरी भी रो रहा है, हमारा कश्मीरी भी शहीद हो रहा है। आज हमारा पंजाबी भी रो रहा है, वो भी शहीद हो रहा है। 24 नवंबर को आपने देखा, इन लोगों ने मासूम लोगों पर गोलियां चलाई। आपने मुरीद के में देखा, इन लोगों ने मासूम PNP के कारकुनों पर गोलियां चलाई। आज भी आप देख रहे हैं कश्मीर में हमारे जो भाई बहन निकले हुए हैं, जो उन पर भी गोलियां चला रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये खूनी परिंदे बन चुके हैं। इनके लिए खून इतना सस्ता हो चुका है कि ये एक एक मासूम इंसान को जिंदा कहा जाएंगे, लेकिन जरा बराबर शर्म इनको नहीं आएगी। ये परिंदे बन चुके हैं मेरे पाकिस्तानियों, ये परिंदे बन चुके हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इनकी गोलियों से डरते हो? आप इनके टैंकों से डरते हो? आप इनके रॉकेटों से डरते हो? जब आप बंदूक से नहीं डरते, टैंक से नहीं डरते, रॉकेट से नहीं डरते, तो मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान का ये सिपाही जिसने उसको इस सूबे का वज़ीर आला बनाया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आम कारकुन इमरान खान साहब का ये अदना सिपाही आपको लीड करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं मुकाबला करूंगा इंशाअल्लाह। मेरे पाकिस्तानियों, मुल्क पर मुसल्लत कब्जा माफिया जो बंद कमरों में फैसले करते हैं, पाकिस्तान के फैसला साज और मंसूबा साज, जो बैरूनी ताकतों के उजरती कातिल बने हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती मफादात का सोचते हैं, सिर्फ बैरूनी ताकतों को खुश करने के लिए अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात खराब, ईरान के साथ भी ताल्लुकात खराब, चाइना के साथ भी ताल्लुकात खराब।
मेरे पाकिस्तानियों, इनको आपकी कोई फिक्र नहीं है, पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। इनके जेब भरते हो, ये आपके टैक्स का पैसा चोरी करके बाहर जजीरे खरीदते हो, इन्होंने आपकी फिक्र नहीं करनी। मेरे नौजवानों, कुछ लोग आपको काकरोच कह रहे थे, मैं आपको इकबाल का शाहीन कह रहा हूं। पाकिस्तान के शाहीन है। मेरे नौजवानों, हमने अपना मुकदमा खुद लड़ना है, हमने रोडों पर खुद निकलना है, हमने इनका मुकाबला खुद करना है, हमने अपना इंसाफ खुद करवाना है इंशाअल्लाह ताला। ना अदालतें हमारा इंसाफ करेगी, ना कोई हमारे लिए आवाज उठाएगा, ना बाहर से कोई तारिक बिन जियाद और मोहम्मद बिन कासिम आएगा। हमने खुद तारिक बिन जियाद बनना है, हमने खुद मोहम्मद बिन कासिम बनना है, हमने जालिम के खिलाफ आवाज उठानी है, हमने जालिम के खिलाफ निकलना है। इमरान खान साहब के लिए नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, अपने लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के लिए हमने निकलना है। निकल के क्या करना है? ये चोर, ये डाकू, ये लुटेरे जो मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं, ये चंद खानदान जो मुसलसल पाकिस्तान को खा रहे हैं, हमने इनके लिए निकलना है। अगर सिस्टम कोलैप्स कर चुका है तो मुतबादिल कौन है? अगर सिस्टम कोलैप्स कर चुका है तो आप कह रहे हैं कि चेहरे बदले जाएंगे, पर्ची से कोई आया होगा, वो मेरे मुल्क का मुस्तकबिल होगा, किसी की बेटी होगी, वो मेरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अपने चोर, लुटेरे, डाकू खुद संभालो। हमारा एक शहजादा है, हमारा एक ही लीडर है, हमारा एक ही जान है, और वो अडयाला जेल में कैद है, जिसका नाम है इमरान। इमरान यस, ये मेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। मेरे नौजवानों, हमने खुद निकलना है, हमने इकबाल का शाहीन बनना है, हमने अपना इंसाफ खुद करना है। आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। जो मीडिया चैनल पर थे, जो हमारी सहाफी बरादरी थी, अरशद शरीफ शहीद, एक नाम और नाम जिसको शहीद कर दिया गया, हमारे इमरान रियाज भाई जो हक और सच बोलते हैं, उसको जेलों में डाला गया, उस पर तशद्दुद किया गया, उसे आवाज छीनने की कोशिश की गई, लेकिन वो मर्द मुजाहिद था, ताकतवर था, वो खड़ा रहा, झुका नहीं, डटा रहा, आवाज गवा बैठा, लेकिन जालिम के सामने नहीं झुका। हमारे और सहाफी मुईद पीरजादा, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम, समीना पाशा और इस तरह के कई जर्नलिस्ट जो हक और सच बोलते हैं, या तो उनको मुल्क बदर कर दिया गया और या जो है चैनल्स पे बंद कर दिया गया। हमारे बाकी मीडिया चैनल वो भी मजबूर है, ये कमाल है, वो भी सच नहीं बोल सकते, सच नहीं दिखा सकते। आपने, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, आपने इन सब की आवाज बननी है। आपने उन जजेस की आवाज बननी है जो इंसाफ नहीं कर पा रहे। आपने अदलिया के बाजू बनना है जो इंसाफ नहीं कर पा रहे। आपने मीडिया के बाजू बनना है जो सच नहीं दिखा पा रहे। आपने हर उस इदारे के बाजू बनना है जो ना इंसाफ कर सकती है, ना सच बोल सकती है, ना हक का साथ दे सकती है। ये नौजवानों आपने करना है, बाहर से किसी ने नहीं आना। ये तमाम इदारे, ये मीडिया चैनल, ये सहाफी बरादरी, ये वकला, ये जजेस, ये सारे नौजवानों आपकी तरफ देख रहे हैं। आपने इस मुल्क को संभालना है, आपने इस मुल्क का इंसाफ अपने हाथों में लेना है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। मेरे नौजवानों, रागम दरता जब इदारे मफलूज है, बार बार अदालतों में जाने के बावजूद हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। जितनी भी हमारे आईनी, कानूनी, जमहूरी रास्ते थे वो हमने अपना लिए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो कौन सा रास्ता बचता है? कौन सा रास्ता बचता है? कौन सा रास्ता बचता है?
कौन सा रास्ता बचता है? कौन सा रास्ता बचता है? बीचो क्या डाला जे? मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, याद रखना, आप पाकिस्तान का 60% है नौजवानों। 60% का मतलब आप पाकिस्तान की आबादी के 13 करोड़ हैं। अगर आप 1% भी निकले, ये 13 लाख लोग हो गए। अगर 10% भी निकले तो 1 करोड़ 30 लाख लोग हुए। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, वो लीडर जो अकेला जेल में है, वो हर वक्त कहता था कि मेरे नौजवानों, मेरे नौजवानों, मेरे नौजवानों, आज नौजवानों, उसको आपकी जरूरत है। तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। नौजवानों, 27 सितंबर को इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद का रुख करेंगे। हमारे कुछ मुतालबात हैं कि इमरान खान साहब को इंसाफ मिले, अदालत इंसाफ करें, क्योंकि अगर आज इंसाफ हो और ये अदालतें मफलूज ना होती, ये जजेस इंसाफ करते, तो इमरान खान साहब आधे घंटे में जेल से बाहर होते। हमें इंसाफ चाहिए, हमें ठीक नहीं चाहिए, हमें हमारा लीडर चाहिए, और वो भी इंसाफ के साथ। आपको इंसाफ करना पड़ेगा, आपको इमरान खान को इंसाफ देना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर नहीं दिया तो 27 सितंबर याद रखना। हमारा दूसरा मुतालबा है, पहला मुतालबा कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के तमाम केसेस इंसाफ के साथ सुने जाएं। दूसरा मुतालबा कि इमरान खान साहब पर जो पाबंदियां लगी है, चाहे वो मुलाकातों पर है, चाहे उनके जाती डॉक्टर्स पर है, चाहे वो उनकी वकला पर है, चाहे दोस्तों पर है, वो सब उठानी चाहिए। इमरान खान साहब के साथ उनकी लीगल काउंसिल, उनके वकला, उनकी फिजिशियन, डॉक्टर, उनके पॉलिटिकल दोस्त, उनकी फैमिली, इनकी मुलाकातें खोली जाए जल्द अज जल्द। मेरे पाकिस्तानियों, हमारे कोई भी मुतालबा गैर कानूनी और गैर आईनी नहीं है। हमारे सारे मुतालबा जायज हैं। तमाम तरह आईनी कानूनी रास्ते अपनाने के बावजूद भी हमें इंसाफ नहीं मिला, तो 27 सितंबर भूलना नहीं, 27 सितंबर याद रखना इंशाअल्लाह ताला। अभी प्रोपेगेंडे शुरू होंगे। कुछ लोग कहेंगे कि सूबे के हालात खराब हैं। मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब चाहिए? इमरान खान साहब चाहिए? इमरान खान साहब चाहिए? तो इमरान खान साहब आएगा, यहाँ पर अमन होगा। इमरान खान साहब आएगा, यहाँ की मईशत बेहतर होगी। इमरान खान साहब आएगा, वो पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली देगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे नौजवानों, जितने भी यहाँ इसके बाद प्रोपेगेंडे हुए, जो भी करे, अंदरूनी हो बैरूनी हो, आपने एक बात करनी है कि 20 सितंबर तक पाकिस्तान आ जाओ, क्योंकि 27 सितंबर को कुछ होने वाला है। वमा अलैना इल्लल बलाग।